السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم، سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم بوبکر کیتا فوجی بغاوت کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے جو بائیڈن کو باقاعدہ اپنی صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ اسرائیل سے دوستی کرنے پر سعودی شہزادے کو ڈونلڈ ٹرمپ کا تحفہ۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو پہلے سے کہیں زیادہ فروغ دیا۔ وائٹ ہاؤس بغیر کسی امتیاز کے یو پی ایس سی میں اقلیتوں کا انتخاب نقوی۔ فیس بک تنازع، مارک زکربرگ کو مکتوب جانچ کا مطالبہ۔ دیونار قبرستان میں میت دفن کرنے کا سلسلہ پھر شروع۔ قومی بھارتی ایجنسی کی تشکیل کو کابینہ کی منظوری۔ الیکشن کمشنر اشوک لواسا نے استعفا دیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وائس چیئرمین بن گئے۔ 3 اور ہوائی اڈوں کی آپریٹنگ کو نجی ہاتھوں میں حوالے کرنے کی کابینہ کی منظوری۔ تلنگانہ میں 6 ایئرپورٹس کا عنقریب قیام۔ آندھرا پردیش کیبنٹ نے آج اپنے اجلاس میں وائیسار آسرا اسکیموں کو منظوری دی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 673 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 18,944 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی کے سرکاری میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم بوبکر کیتا فوجی بغاوت کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ مقامی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساتھ ہی حکومت اور پارلیمان کو بھی تحلیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اقتدار میں رکھنے کی خاطر خون کی ایک بھی بوند بہائی جائے۔ اس اعلان سے چند گھنٹوں قبل ہی ملک کے صدر اور وزیر اعظم بوئیبو سیسے کو باغی فوجوں کی جانب سے حراست میں لے کر ایک فوجی کیمپ منتقل کیا گیا تھا۔ فرانس اور خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے جو بائیڈن کو باقاعدہ اپنی صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ امریکہ میں اس برس ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل ہوں گے۔ امریکہ میں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے 4 روزہ کنونشن پیر 17 اگست کو شروع ہوا تھا اور منگل 18 اگست کو پارٹی نے صدارتی امیدوار کے لیے جو بائیڈن کے نام پر مہر لگا دی۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان دلچسپ مقابلے کی توقع ہے۔ اسرائیل سے دوستی کرنے پر سعودی شہزادے کو ڈونلڈ ٹرمپ کا تحفہ۔ آل سعود خاندان کے اسرار فاش کرنے والے ایک سعودی شخصیت نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد بن سلمان سے وعدہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی صورت میں وہ انہیں مسند بادشاہت پر بٹھا دیں گے۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو پہلے سے کہیں زیادہ فروغ دیا۔ وائٹ ہاؤس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ امریکی تعلقات کو بڑھایا اور دونوں ممالک کے مابین شراکت کو مستحکم کیا۔ اس سے پہلے کسی صدارتی مدت میں ایسا نہیں دیکھا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ٹرمپ آئندہ برسوں میں بھی اس اہم شراکت داری کو جاری رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ایک سینئر انتظامی عہدیدار نے پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت تعلقات کو ترجیح دی اور گزشتہ 3.5 سالوں میں شراکت کے تمام پہلوؤں کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ بغیر کسی امتیاز کے یو پی ایس سی میں اقلیتوں کا انتخاب نقوی۔ مرکزی اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ مودی حکومت کی صلاحیت کو ترغیب دینے، فروغ دینے اور ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر کی گئی ٹھوس کوششوں کا نتیجہ اقلیتی امور کی وزارت کے نئے اڑان اسکیم کے تحت فری کوچنگ حاصل کر کے غریب، کمزور، پسماندہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے 22 نوجوان رواں سال ملک کی سب سے ممتاز سول سروس میں منتخب ہوئے ہیں۔ فیس بک تنازع، مارک زکربرگ کو مکتوب جانچ کا مطالبہ۔
कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ से शिकायत की है कि हिंदुस्तान में उनकी कंपनी नफरत और फर्जी खबरें फैलाने में माऊन बन रही है, शिद्दत पसंदों का साथ देकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देकर 1 से 2 महीने में जांच मुकम्मल करने और तब तक फेसबुक इंडिया की क़ियादत को तब्दील करने की मांग की। देवनार कब्रिस्तान में मैयत दफन करने का सिलसिला फिर शुरू। गोगंडी के रफी नगर कब्रिस्तान में एक बार फिर कब्रों की जगह तकरीबन फुल हो जाने और कब्र खोदने पर जमीन से पानी निकलने के पेश नजर देवनार कब्रिस्तान में तामीराती काम का जारी होने के बावजूद आम मैयत और कोरोना मैयत के दफन के लिए एक बार फिर 14 अगस्त से गेट खोल दिया गया है। इस जिमन में रफी नगर कब्रिस्तान के बीएमसी केयर टेकर जगदीश मोरे से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि किसी भी वक्त रफी नगर कब्रिस्तान में मैयत दफन करने का सिलसिला रोका जा सकता है। इसमें बमुश्किल चंद मैयत और दफन की जा सकती है। इसी वजह से ही देवनार कब्रिस्तान में एक बार फिर तदफीन करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में मकामी एमएलए अबू आसिम आजमी से भी राबिता कायम करने की कोशिश की गई मगर गुफ्तगू नहीं हो सकी। कौमी भारतीय एजेंसी की तश्कील को काबीना की मंजूरी। सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को अब अलग अलग इम्तिहानात नहीं देने होंगे। हुकूमत ने गैर गेजेटेड ओहदों और बैंकों के लिए मुश्तरका तौर पर दाखिला जाती इम्तिहानात का इनकाद करने के मकसद से कौमी भर्ती एजेंसी तश्कील करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज यहाँ हुई मरकजी काबीना मीटिंग में इस जिमन में एक तजवीज मंजूर की गई है। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में नायब सदर की हैसियत से शामिल होने जा रहे हैं। कसीरुल जहती फंडिंग एजेंसी के लवासे अगले नायब सदर के ओहदे पर तकरीर के ऐलान के 1 माह बाद इस्तीफा दे दिया। 62 साल लवासा को जनवरी 2018 में इलेक्शन कमीशन बनाया गया था और उनके दौर में अभी 2 साल बाकी थे। अशोक लवासा गुज़िश्ता साल इस वक्त बहस में आए थे जब वो लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुताल्लिक कमीशन के फैसले के खिलाफ किए गए थे। पीएम मोदी के खिलाफ 6 शिकायतें दर्ज की गई। लवासा ने उनमें से कुछ मामलात पर कमेटी के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं किया। 3 और हवाई अड्डों की ऑपरेटिंग को निजी हाथों में हवाले करने की काबीना की मंजूरी। हुकूमत ने 3 और हवाई अड्डों की ऑपरेटिंग निजी हाथों के हवाले करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में फैसला किया गया। इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग के बाद नामानिगारों को बताया कि जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों की ऑपरेटिंग निजी कंपनियों को हवाले करने की तजवीज को काबीना में मंजूरी दे दी गई। इससे वजारत शहरी परवास के तहत कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को एक मुश्त 1,70,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। साथ ही मुसाफिरों को मिलने वाली सहूलियात में भी बेहतरी आएगी। मिस्टर जावड़ेकर ने बताया कि PPP की बुनियाद लीज पर इन हवाई अड्डों की ऑपरेटिंग, मैनेजमेंट, देखभाल और डेवलपमेंट वगैरह का हक निजी कंपनियों को हवाले किया जाएगा। ये लीज 50 वर्षों के लिए होगी। अभी इन तीनों हवाई अड्डों की ऑपरेटिंग AAI के पास है। तेलंगाना में 6 एयरपोर्ट्स का अनकरीब क़याम। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के महकमे अमारात व शवारा से रियासत में 6 मौजूदा एयरपोर्ट्स के मुतालिक तफसीलात तलब की हैं। वरंगल, निजामाबाद के चक्रानपल्ली, भेदरदरी, कोत्ताकोडम, महबूब नगर के देवरकुंडा और बसंत नगर में उन एयरपोर्ट्स के क़याम की तजवीज है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर नई दिल्ली से बजरिए ईमेल तफसीलात मांगी हैं। महकमे अमारात व शवारा ने निजामाबाद, महबूब नगर, खम्मम, करीम नगर, वरंगल और आदिलाबाद के अपने सर्कल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को अलहदा मकतूब रवाना करते हुए तफसीलात मांगी हैं। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आज अपने इजलास में वाईएसआर आसरा स्कीमों को मंजूरी दी। रियासती आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सदारत में आज रियासती काबीना इजलास मुनाकिद हुआ।
इस इजलास में जगन मोहन रेड्डी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस मौके पर काबीना ने वाईएसआर आसरा स्कीम को मंजूरी दे दी। वाज़ेह रहे कि स्कीम वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत की मुनफरिद नवरत्नालू का हिस्सा है, जिसे अब शुरू कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत रियासत के डोगरा खवातीन को 4 वर्षों में 27,000 करोड़ का फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा नई सनती पॉलिसियों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के आज के फैसलों के मुताबिक 21 सितंबर को वाईएसआर संपूर्ण योजना स्कीम, 5 सितंबर को वाईएसआर विद्या कानून का स्कीम, 11 सितंबर को वाईएसआर आसरा स्कीम का आगाज अमल में आएगा। पंचायती राज महकमे में 51 डिविजनल डेवलपमेंट्स की जायदादों को पुर करने को भी मंजूरी दी गई। काबीने इजलास में रियासती उज़रा के अलावा रियासत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर नानी ने विद्या कानून का स्कीम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत रियासत के तलबा को बेल्ट, शूज, यूनिफॉर्म और दीगर जरूरी चीजें सरबराह की जाएंगी। रियासत भर के 43 लाख से ज्यादा तलबा को फायदा होगा। सिविल सप्लायर्स के जरिए से हर घर में मियारी चावल सरबराह किया जा रहा है। वाईएसआर जिला में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासत में ज़राई शोबे में ताहाल 26,872 करोड़ की रकम दी जा चुकी है। 60 करोड़ टोबैको के किसानों की इमदाद की गई। जिला कड़पा में आज कोरोना वायरस के 673 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 18,944 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 673 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे तादाद बढ़कर 18,944 हो चुकी है। जिला कड़पा में हर दिन इस वबा में इजाफा ही होता जा रहा है, हालांकि लॉकडाउन भी नाफिज है। आज जिला में 667 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 14,334 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक जुमला तादाद 199 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाले खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अवेकिंग न्यूज़ टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। शब बखैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद